سے جو بڑا مہربان اور رحیم، جو بڑا رحیم اور مہربان ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا ترجمہ ہے. اگر میں نے غلط کیا تو مجھے بتا دیجیے، مجھے گائیڈ کر دیجیے گا پلیز. کیوں عثمان بھائی یا جمیل اوان صاحب، ایسی بات ہے نا، یہ میں ترجمہ ٹھیک کیا نا؟ جی جی ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں یہ مرزائیوں کے ترجمے پہ. مرزائیوں نے یہ آپ کے سامنے ترجمہ دیکھیں جی. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ بسم اللہ کا ترجمہ پہلا رونگ. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں الف لام میم. جب ہم اب قرآن سیکھتے ہیں تو ہمارے مولوی صاحب نے کبھی بھی ہمیں جناب الف لام میم کا ترجمہ نہیں بتایا. یہ حروف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے درمیان اور میرے پیارے آقا دو جہان کے درمیان ہے، کیونکہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین، ٹھیک ہے، ان کے درمیان یہ لفظ ہیں اور یہ کوڈ ورڈ ہے. اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک حدیث بھی ہے، کل مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جو بھی ان کا ترجمہ کرے اور یہ وہ سب کچھ غلط ہے اور کفر ہے. اب دیکھیں جی، الف لام میم، نیچے بسم اللہ کا جو ترجمہ تھا، اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. الف لام میم کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا، نعوذ باللہ. تو مرزا جیل میں جہنمی کہتا تھا کہ جناب قادیانی وہ قرآن بانٹ رہے ہیں تو مولویو تسی قرآن نہیں پڑھن دینا. ہوں جڑا 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਤਸ਼ਰੀਹ ਪੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਹੰਨਮੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ. ਐ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ. ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਦਨ ਇਨਫ ਫॉर यू मुसलमान. ٹھیک ہے. اب آپ بات جاری رکھیں. تو جو میرا فرض تھا میں نے بتا دیا ہے، اور اس میں قرآن شریف میں یہ ایک غلطی نہیں ہے. انہوں نے ترجمہ غلط کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ان بے شرموں نے، بے غیرتوں نے. جی بات کریں، میرا جو فرض تھا دین مسلمان جو میں نے بتانا تھا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے بہت سارا دجل کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ بات جاری رکھیں. کمینگی کی بھی حد ہوتی ہے یار. جی میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. جی جی پوچھ. میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب کہ ابھی جس طرف ہمارے ملک کے مسائل جا رہے ہیں، جس طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، جس معیشت کی طرف ہمیں لے کر یہ جو لوگ جا رہے ہیں، جس IMF کے مطلب کہ وہ ہمارے اوپر وہ مسلط کرتے جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کل کو مطلب IMF ان کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ مطلب کہ آپ ان کو بھی تھوڑا سا آپ چھوٹ دیں جی، آپ ان کے اوپر یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا، کتنی تو چھوٹ پھر ملے ہمارا گی میری مطلب جان اس دے کے بارے ٹوٹے، میں میری جان دے ٹوٹے، اور کتنی چھوٹ دلوانی ہے. ہیں؟ یہ جو میں نے پکچر لگائی ہوئی ہے اس کو غور سے دیکھ ذرا، اس کو غور سے دیکھ. یہ جج بے غیرت ہے، یہ جج بے غیرت کا جو فیصلہ کیا اس نے، یہ بھی سن لو، اس کی بھی سن لو. یہ کس کھیتی کے مولی، گاجر مولی ہیں. ایک بندہ کہ کیا ہماری ایجنسیز کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ نہیں میں جی بتاتا پلیز ہوں، ہمیں نہیں. میں بتاتا ہوں کس کا بیٹا ہے یار. اب ساری چیزیں ہمیں بتانی پڑے گی. میں ایک جاہل سا انسان ہو کے تو اتنی انفارمیشن رکھ سکتا ہوں. تو یہ ہماری جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں، تیرے پورے جسم نو جناب تیل مار کے رکھاں گے. وہ پیانیاں سائیں جڑا حد ہوتی ہے یار، بے حسی کی بھی حد ہوتی کر دی ہے لوگوں نے. اب بات جاری رکھے، میں ویڈیو ڈھونڈتا ہوں تو پر آپ کو دکھاتا ہوں. جی ان کو جو چھوٹ ملی ہوئی ہے نا، اس کی ایک مثال آپ یہی لے لیں کہ ہماری عوام جو ہے ابھی تک جو ہے پہ یہ TLP والے ابھی تک صرف ان کے مینار گرا رہے ہیں. حالانکہ حق یہ ہے کہ ان کی پوری مسجد گرانی چاہیے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حکم دیا تھا نا کہ مسجد درار اس کو جلا دو، اور اس میں پوری کی پوری مسجد کو جلا دیا گیا تھا. لیکن ابھی بھی ان کو جو ہے تھوڑی چھوٹ دی ہے کہ ان کے صرف مینار گرائے جا رہے ہیں. آپ اگر سورہ توبہ میں دیکھیں تو مسجد درار کی وہاں پہ جو ہے ذکر ہے. اب اس یہ بات فنش کر دیں، الحمدللہ میں ہمیں ویڈیو دکھاتا فخر
बात करें, फिर मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है जी, हमारे पूरे ज़िले में इनका कोई नामो निशान मतलब कोई इक्का दुक्का होगा, लेकिन इबादत गाह ना बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हैं इंशाल्लाह ना बनने देंगे। अभी तक तो अल्लाह ताला का करम ख़ास है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला का ये करम ख़ास रहे कि हम इंशाल्लाह नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं और उनके ऊपर जान देने वाले हैं। इंशाल्लाह इनको इस तरह मतलब कि छोड़ नहीं देंगे। ये क्या समझते हैं कि हम मतलब है कि ये इन्होंने 185 में बवाल किया था, पता नहीं आपको पता नहीं, इन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन मतलब वो स्टूडेंट जो जा रहे थे उन्होंने वहां पर इनको इतना मारा, कुछ तो उसमें शहीद हो गए थे हमारे। ये 2 मिनट की वीडियो है। प्लीज़ काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खामोशी से सुने और आपको पता चलेगा कि काजी फैज़ कौन है। ये सुन लीजिएगा। तारीख शाहिद है, डबल टैप गद्दारी खून में होती है और नस्ल दर नस्ल चलती है। याद रहे कि तारीख झूठ नहीं बोलती। क़याम पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अवामी रेफरेंडम करवाने का फैसला किया गया, जिसमें अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक को तरजीह दी। बलूचिस्तान में अलबत्ता गोरों ने ये असूल अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि बलूचिस्तान आजाद हैसियत में कायम रहे, ताकि बर्रे सगीर से इनखिला के फौरी बाद अंग्रेज अपनी गवर्नेंस वहां मुंतकिल कर दे और फिर वहां बैठकर बतदरीज खित्ते का कंट्रोल दोबारा हासिल कर सके। चुनाचे बलूचिस्तान में अवामी रेफरेंडम की बजाय वहां के शाही जरगे के अक्सरियती वोट की बिना पर फैसला करने का ऐलान कर दिया गया। ये निहायत हसास मामला था। अगर शाही जरगा इल्हाक की पाकिस्तान से इनकार कर देता तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन बहुत कमजोर हो जाती। शाही जरगे के मुतालिक जान लें, बलूचिस्तान के कुछ इलाके बशमूल क्वेटा, पश्तीन तो बरतानवी रियासत के जेर इंतजाम थे, लेकिन दूसरे इलाके बशमूल रियासत कलात, रियासत खारान, रियासत मकरान, रियासत लसबेला वगैरह आजाद हुआ करते थे। बलूचिस्तान के मामलात चलाने के लिए अंग्रेज ने इन इलाकों के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक जरगा बना रखा था, जिससे शाही जरगा कहा जाता था, जिसका सदर एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया होता था और आमतौर पर अंग्रेज का वफादार समझा जाता था। जब इल्हाक पाकिस्तान का मामला शाही जरगे में जाने का फैसला हुआ तो कांग्रेस और अंग्रेजों को इत्मीनान हो चुका था कि जरगे का अक्सरियती फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक आएगा। ये सूरत हाल चंद कबायली लीडरों के लिए काबिल कबूल न थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे। उस वक्त काकड़ कबीले के सरबराह नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई आगे बढ़े और उन्होंने अपने हम ख्याल कबायली लीडरों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के हक में मुहिम शुरू कर दी। दूसरी तरफ अब्दुस समद अचकज़ई, बबांगे दोहल कांग्रेस की हिमायत में सामने आ गए और क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए लॉबिंग शुरू कर दी। नवाब जोगेज़ई का साथ देने के लिए जमाली कबीले के मीर जाफर खान जमाली आगे आए और उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में कैंपेन शुरू कर दी। दूसरी तरफ अब्दुस समद अचकज़ई ने जिरगे के सरदारों से कहना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान के साथ नहीं जाते तो हिंदुस्तान की हुकूमत जिरगे को फील फॉर 18 करोड़ रुपए नकद और सालाना 4.5 करोड़ रुपए बतौर स्पोर्ट फंड दिया करेगी। इतनी पुरकशिश ऑफर सुनकर बहुत से सरदारों का फैसला डगमगा सकता था। चुनाचे नवाब जोगेज़ई और नवाब जमाली ने भरपूर कैंपेन शुरू की और हर सरदार के पास जाकर क़याम पाकिस्तान के हक में वोट देने की सिफारिश करना शुरू कर दी। जिस वक्त नवाब जोगेज़ई, जमाली और नसीम हिजाजी जैसे लोग शाही जिरगे के अराकीन को पाकिस्तान के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे थे, ऐन उसी वक्त मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के सूबाई सदर ने शाही जिरगे के सदर एजेंट गवर्नर जनरल से अपील की कि शाही जिरगे से कलात, काकड़ और जमाली कबाइल के सरदारों को निकाल दिया जाए। ये मुतालबा हैरान कुन था, क्योंकि अगर इन सरदारों को निकाल दिया जाता तो फिर क़याम पाकिस्तान के हक में वोट डालने वाला कोई न रहता। रेफरेंडम की तारीख 29 जून को तय हुई थी और उस वक्त तक नवाब जोगेज़ई अपने साथ अच्छी खासी हिमायत इकट्ठी कर चुके थे, लेकिन बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर की दरखास्त का जायजा लेने के लिए शाही जरगा सदर ने 28 जून की रात ऐलान कर दिया कि 29 जून के ऐलान में सिर्फ वायसराय का पैगाम पढ़कर सुनाया जाएगा और वोट 3 जुलाई को डाला जाएगा।
इसका मकसद ये था कि अगले चंद दिनों के अंदर जरगे की कंपोजिशन तब्दील की जा सके। नवाब जोगेज़ई, नसीम हिजाजी और जमाली को साजिश की भनक पड़ चुकी थी और वो इस तमाम तर मामले को किसी न किसी हद तक जान चुके थे। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वायसराय का पैगाम पढ़ने के फौरन सब कबायली सरदार खड़े होकर पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। अगले दिन 29 जून को इजलास शुरू हुआ, वायसराय का पैगाम पढ़ा गया और इसके फौरन बाद जोगेज़ई, जमाली, काकड़ और दूसरे कबाइल के सरदारान अपनी जगह से खड़े हुए और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये आम बात नहीं थी। 65 के जरगे में 40 से ज्यादा सरदारान ने जब ये ऐलान कर दिया तो फिर 3 जुलाई के इजलास की अहमियत खत्म हो गई और यूं अल्लाह की मेहरबानी से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सूबाई सदर कौन था जिसने शाही जरगे से पाकिस्तान के हामी सरदारों को निकालने की सिफारिश की? उसका नाम काजी ईसा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज काजी फायज ईसा के वालिद गिरामी थे। जी हाँ, वही काजी फायज ईसा के जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तहरीक पाकिस्तान के फर्जंद का बेटा है। दर हकीकत काजी ईसा एक खुद परस्त और अना परस्त शख्स था जिसने अपनी जाती ख्वाहिशात की वजह से पूरे बलूचिस्तान की शमूलियत खतरे में डाल दी थी। आज उसके बेटे ने महज 3 अरब रिश्वत लेकर मुल्क को 500 अरब का नुकसान दिया और इससे बढ़कर मुल्क के अदालती निजाम की साख पर ऐसा काला टीका लगाया जो शायद सदियों तक मिट न सके। सच कहते हैं, गद्दारी खून में होती है। ऊपर बयान किए गए वाकयात तारीख का हिस्सा हैं। आखिर में सलाम उन बलोच लीडर्स को जिन्होंने 1947 में करोड़ों की ऑफर्स ठुकराकर पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। काजी ईसा उन बलोच और पख्तून लीडरों की धूल के बराबर भी नहीं। कयूम निजामी की किताब कायदे आजम बहसीयत गवर्नर जनरल से इक्तबास। जी, अब मेरा सवाल, तारीख शाहिद है। मेरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यार ये वीडियो जिस मर्द मुजाहिद ने लगाई है, जिस भी मर्द मुजाहिद ने लगाई है, ठीक है, क्या हमारी एजेंसीज को ये नहीं पता कि जस्टिस काजी ये जो जस्टिस लगा हुआ है फैज, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस हद तक जा सकता है? मैं एक बात आपको कर दूं, यहाँ पे 51 बंदे सुन रहे हैं। मेरा ये जो पिक्चर लगी हुई है, ये मेरा निशान है, ये मेरी पहचान है। मैंने आज तक अपनी पार्टी को इस ब्रॉड पे कभी भी डिफेंड नहीं किया या सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता। यहाँ पर मेरी ब्रॉड पर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आते हैं, हर मसलक के लोग आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, हर मसलक के लोग आते हैं, ठीक है, और सिर्फ मुसलमान बन के और यहाँ पर रद्द कादियानियों पे काम होते हैं। तो प्लीज़ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी जहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि बीने मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रद्द कादियानियों पे काम करें। बाबा पैरस वाले, मैं तो 2 मिनट की कॉल ते लेना वहाँ। अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ ना, अगले वाली, ठीक है, उसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा। जी, ये पीर साहब हैं, कोई पहले इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। जी, पीर अजमल रियाज साहब। जी पीर साहब, आपने कोई बात करनी है? पीर साहब अनम्यूट करें और हमसे बात करें प्लीज़। पीर अजमल रियाज साहब, प्लीज़ काइंडली टॉक टू अस। ये कोई और बंदा है मोहतरम, ये कोई और बंदा है, इस वजह से म्यूट लगा के बैठा है, सामने नहीं आ रहा। चलें, ये ठीक है। कोई और अच्छा, बंदा है। अब जो है ना, अब मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूँ। कादियानियों का ये डॉक्टर होली स्प्रेड है, ठीक है, ये मेरी ब्रॉड पे आते हैं। इन्होंने ये FIR पढ़ी थी, ठीक है, और इनके पास वो FIR है, और इस FIR के बारे में भी जो है ना, वो भी मैं आपको बता दूं। जी पीर साहब, क्योंकि आपकी ID बहुत प्यारी है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे बात करूं कि आप कौन हैं। जस्ट
جی پیر صاحب بولیں. جی السلام علیکم شہد بھائی. وعلیکم السلام. بابا جی ذرا 1 منٹ میوٹ کریو. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਦਾਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆ ਕਰੋ. नहीं मैं देखे पता क्या, हम जो हक पे होता है ना कभी गाली नहीं देता. मुझे टारगेट किया जा रहा है. साहब के बारे में कर रहा है कि सुनी नहीं जाती यार भाई. बाबा जी लिसन, क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं ज़रब पहुंचा रहा हूँ, वहां तक पहुंचाने दो यार, मुझे कोई फर्क पड़ता है. गालियां वापस जाती हैं मेरी जान दे टोटे, गालियां वापस. चलो खैर आप अपनी बात जारी रखिए प्लीज. बाबा जी सिंपल गल है ये कि खत्म नबूवत ते नमूस रसालत ते पहरा देने वास्ते सानू कोई गालां भी कढ़दा, सानू कोई जुत्तियां भी मारदा, सानू गोली भी मारदा, सारा कुछ हाजिर जो है जी, कोई मसला नहीं. अल्लाह दी कसम चुक के कहना मैं हर कुर्बानी देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸੇ ਜਨਾ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਨਾ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ वो नियोग करवाए, उसके घर ना जाए बल्कि उसको अपने हामद के घर लेके आए. ते आहो असी उत्थे तुसी सही हो, असी ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਾਂਗੇ. अच्छा जी ये मोहम्मद साहब आए हैं कि मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शायद भी कैसे हैं? बस ठीक ठाक सरकार, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मैं दिन को क्लास पढ़ाता हूँ, सुबह भी शाम भी आपकी बरोस्ट पे आता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. यकीन करें बड़ा दिल खुश होता है क्योंकि ये जो काफिर कादियानी आजकल यही सफ़ है, ये भी कादियानी की नस्ल में से है. तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह. बड़ा दिल खुश होता है यार आपकी बरोस्ट पे आपके माशाल्लाह. थैंक यू सो मच सर. बस दुआओं में याद रखिएगा कि सर अल्लाह ताला जितनी भी ये मेरी चांस है इनको यहाँ करता रहूँ. अच्छा जी, अब मैं जो दूसरी वीडियो चलाने लगा हूँ ना, उस फैसले का पोस्टमार्टम कर रहे हैं मेरी ही ब्रॉड पे डॉक्टर होली स्पिरिट साहब. मैं सलूट भेजता हूँ उनको कि माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती जो हैं वो मेरी ब्रॉड पे आते हैं. और इस ब्रॉड के जो माने कहते हैं ना कि मेरे राइट हैंड मैन है वो डॉक्टर होली स्पिरिट हैं. ठीक है, तो ये उन्होंने इस फैसले को पढ़ा, इस ब्रॉड पे सुनाया और आपके इस ब्रॉड के तवस्सुत से वालेकुम सलाम मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि ये काजी फैज़ ने किस तरह से दजल किया और इस फैसले का फ्यूचर में पाकिस्तान के नमूस रसालत का जो कानून है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये ज़रा सुनिएगा, फिर इस पे बात करते हैं. दीन है, वो एक दीन के मानने वाले हैं. कुरान कहता है कि दीन किसका है? कादियानियों का दीन है, वो एक दीन के मानने वाले हैं. कुरान कहता है कि दीन किसका है? ईसाई एक दीन है क्योंकि उनका एक सेट ऑफ बिलीफ है. यहूदियत एक दीन है, उनका एक सेट ऑफ बिलीफ है. इस्लाम इस बात की मनाही करता है कि आप किसी ईसाई और यहूदी को मजबूर करें कि वो मुसलमान हो जाए या उसकी मर्जी के खिलाफ आप इस्लाम के कवानीन उस पर लागू करना चाहें. ऐसा नहीं होगा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि उनका एक अलग दीन है. अहले यहूद का, अहले हनूद जो हिंदू हैं उनका, ईसाइयों का. लेकिन सवाल ये है कि क्या कादियानियत का भी एक दीन है? ये काजी फायज ईसा कह रहा है कि ला इकराह से दीना लागू होती है. कुत्ते का बच्चा है कह रहे हैं जी, कहता है ला इकराह से दीना उन पर लागू होती है. अब हमने देखना है कि क्या हम कुरान और हदीस से इसके फैसले को साबित कर सकते हैं. दीन अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपने तमाम बयान के लोगों को खत लिखे, बड़ी इज्जत से कहा, मकूकस अजीम कहकर पुकारा. 2 लोगों को आपने जंग का हुक्म दिया और आपने उन्हें खत्म करने का हुक्म दिया.
दोनों नबूवत के दावेदार थे मिर्जा कादियानी की तरह। एक का नाम असवद अल-अंसी था जिसे सैयदना फिरोज दलेमी रजी अल्लाह अन्हु ने खत्म कर दिया। दूसरे का नाम मुसलमा अल-कज़्ज़ाब था जिसे हजरत खालिद बिन वलीद ने खत्म किया। लेकिन उस वक्त 1200 सहाबा भी शहीद हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा और सोचा भी नहीं कि असवद अल-अंसी और मुसलमा कज़्ज़ाब ला इकराह फिद्दीन के ज़मरे में आते हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब तो कुछ नहीं कहता, कहता था कि मिर्ज़ा कादियानी की तरह जो मुझे उसकी किताब फारूक अव्वल में और दबस्तान मज़ाहिब के सफ़ा नंबर 300 और कुछ है, 7वां चैप्टर है, फिरका सादकिया के अकायद उसका टाइटल है, वहां लिखा है जो मुझे पैगंबर सादिक नहीं समझता उसका इस्लाम गैर मकबूल है, यानी वो मुसलमान है ही नहीं है। उसने कब कहा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अगर उसका दीन है तो फिर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म नहीं दिया ईसाइयों पर हमले करो, यहूदियों पर करो, फलाने पर करो, फलाने पर करो, लेकिन उसकी तो सुनी नहीं क्योंकि उसका कोई दीन नहीं था। वो मिर्जा कादियानी की तरह नबूवत का दावेदार था और अपने आप को मुसलमान कहता था और उसकी ज़ुबान आज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ा जाता था, रसूल पाक का नाम आता था उसकी आज़ान। अगर मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमा को दीन को तस्लीम कर लेते तो उन्हें यह तस्लीम करना पड़ता भाई असली इस्लाम तो मुसलमा कज़्ज़ाब का है, क्योंकि उसका दावा ही है ना कि जो उसे पैगंबर सादिक नहीं मानता वो उसका इस्लाम गैर मकबूल है, यानी वो गैर मुस्लिम है। इनका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फतवे के मुताबिक उनका कोई दीन नहीं है, ना कादियानियों का, ना मुसलमा कज़्ज़ाब का, ना असवद अल-अंसी का। अगर हम एक लम्हे के लिए मान लें कि मरज़इयों का, कादियानियों का, मुसलमा कज़्ज़ाब का, असवद अल-अंसी का दीन है तो हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा काफिर है, क्योंकि हम मिर्जा कादियानी को तो नहीं मानते, हम मुसलमा कज़्ज़ाब को तो तस्लीम ही नहीं करते नबी, हम असवद अल-अंसी को तो नबी नहीं मानते। अगर हम उनका दीन तस्लीम कर लें तो जिस तरह हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, इसी तरह हमको यह भी मानना पड़ेगा कि वो भी नबी हैं। और फिर हम उनका इनकार करेंगे तो फिर हम काफिर हो गए, वो मुसलमान हो जाएंगे। असल में काजी फायज ईसा ने यह फैसला दिया है, ये आयत कुरानी लिखकर उस पर मोहर सबत की है कि कादियानियों का तो दीन है, कुरान के मुताबिक वो ला इकराह फिद्दीन के ज़मरे में है। और अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहती है कादियानियों का दीन है तो खुदा की कसम उम्मत मुस्लिमा का हर मुसलमान काफिर हो गया आज। इसने कौमी असेंबली का फैसला हम सब पर उलट दिया, एक लफ्ज लिखकर ला इकराह फिद्दीन। ये था जी डॉक्टर साहब, कादियानियों का दीन है वो। ये डॉक्टर साहब का सुन लें, जिस तरह इसने फैसला दिया, अब सब कुछ आपके सामने है। मुसलमानों, जितने बंदे सुन रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक ये पैगाम पहुँचाएं। और अब आई हैव नो वर्ड टू से, जितना मेरा फ़र्ज़ था बीन मुसलमान, मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने बता दिया आप लोगों को। बाकी अब मेरा अल्लाह जानता है मैंने कितना इंसाफ किया, ठीक है। I have no word to say now, boys. Honestly, I'm just speechless. अल्लाहु अकबर। यार हमारे मुल्क को लूट लूट के खा रहे हो, जब से ये मुल्क बना है यार हमने उफ तक नहीं की। और खुदा की कसम और खा लो, कम से कम हमारे दीन को तो रहने दो यार।
कलमा पढ़ के कुरान शरीफ पे हाथ रख के हलफ उठाते हो और फिर भी चंद टकों के लिए अपना ईमान बेच रहे हो, चंद टकों के लिए। और लानत है उन ऐसे उन उन अफसरों पे, उन उस मुकद्दस सीटों पे बैठे हुए वो, मैं कहता हूँ कि काफर की औलादो, कुछ शर्म हया है तुम में? पैसा ये यहाँ पे एक साल भी नहीं हुआ, क्वीन एलिजाबेथ पूरे यूरोप की मालिक मर गई, क्या साथ लेके गई? एक पेनी जो होती है ना, एक पेनी, वो भी साथ में अपने नहीं लेके गई। और जो तुम ये पैसा लेके यहाँ पे छोड़ के मरोगे, जब वो तुम्हारे बच्चे वो पैसा खर्च करेंगे, अय्याशियां करेंगे, वो भी अजाब तक क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी कब्रों का वो अजाब जो है तुम्हारे साथ रहेगा। इतना तो सोच लो बेगैर तो, पढ़े लिखे बेगैर तो, कि कम से कम ये सोच लो कि रोज़े महशर जब हिसाब होगा तो सबसे पहले काजी का हिसाब होगा। उसे पकड़ा जाएगा कि तुम्हें इस मुकद्दस सीट पे बिठाया, क्या इंसाफ किया तूने? और उस पाकिस्तान में जहाँ पे एक चीफ जस्टिस एक हॉस्पिटल का मुआयना करता है और वहाँ पे सींगता है कि इस बोतल में शराब है, और जब लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है वहाँ पे शहद निकल आता है। ये हाल है हमारा। फिर कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, फिर कहते हैं मैं गालियाँ देता हूँ। नोच नोच के खा रहे हो तुम उस मुल्क को, खाओ, हमने कब मना किया यार? उफ तक नहीं करते, कम से कम नमूसे रसालत पे हम डाका नहीं डालने देंगे तुम लोग। ये मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ काजी फैज, रोज़े महशर भी तेरा गिरबान पकड़ूंगा, और जब तक मेरी ज़िंदगी है इस फैसले पे अगर गौर नहीं हुआ तो मैं बराडे चलाता रहूँगा, तुझे नंगा करूँगा यहाँ। जिस तरह तेरे बाप ने गद्दारी की, तेरे खून में वो गद्दारी है। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक तुम जो गुनाह करते आए हो, एक एक चीज़ मैं खुदा की कसम उठाता हूँ, अगर मेरे ज़िम्मे ये फैसला होता ना, मेरा बाप नहीं है, अगर तुझे 7 दिन, पूरे 7 दिन तुझे फांसी लटका के डी चौक पे नहीं रखता, या फिर उस अदालत के सामने तेरी जो बॉडी है ना, 7 दिन उस तराजू के साथ लटका के रखता, कि अगले आने वाले को पता होता कि अगर मैं कोई दजल करूंगा तो मेरा भी यही हाल होने वाला है। जबरदस्त यार, बिल्कुल ऐसे ही है, खुदा दी कसम है। वोट हम मुसलमानों को डालते हैं, मुसलमान वोट डालते हैं मुसलमानों को, अगे काफर ले लेने नहीं यार साडे वोट किथे असी जाइए। बस मौत का इंतजार है। भाई शायद मैं इत्थे गल ऐड करांगा। अस्सलाम वालेकुम। एक बाबा सी वो जाने बदवा दे गया भी पुत्र तुसी ना रोवोगे तुहाडी नस्लां ते इन्हां नाल काम वाकई ये कुछ होवेगा। ये जो कुछ कर रहे ना, इन्हां जो बीजना वो कटना भी हैगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने हुक्म नाल। ते इन्हां ने बहुत जलीलत होवेगी बहुत सारी। मुल्क भी तो मैनूं इत्थों तक यकीन है कि इस बंदे की हुण कबर भी नहीं नसीब होने लगी। भाईजान छोड़ साढ़े ईमान दा तकाजा। मेरा जितना फर्ज था मैंने पूरा कर दिया यार, ठीक है। अब मेरा अल्लाह जानता है कि जो हक और सच की बात की, इस फैसले को जिस तरह से पढ़ा गया, मेरी ही ब्रॉड पे पढ़ा गया, वो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी, मैंने लगा दी ताकि लोगों तक जितनी अवेयरनेस पहुँचे। तो हक अदा कीजिए अपने मुसलमान होने का। जहाँ तक ये बातें पहुँचती हैं वाला, जो इस टाइम पर मुझे ये समझ नहीं आती कि मुल्क में इतने इतने बड़े फैसले हो रहे हैं जनाब, हर बंदे को अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी है कि मुझे ये अहदा मिल जाए, मुझे वो अहदा मिल जाए। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता। अगर खुदा की कसम आज इमरान खान होता ना, सबसे पहले उसके अगेंस्ट मैं जाता अगर इस तरह के फैसले होते। जिस तरह भी है इमरान खान, मैं अब कोई ऐसी पॉलिटिकल डिबेट नहीं करने वाला, लेकिन जो हक और सच की बात है
پیارے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ایسا حادثہ، ایسا وقت پڑی تھی، پاکستان کے غریب عوام کی عزت ہوئی تھی. تو پاکستان میں آج کل سب سے بڑا جو جرم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں سچ بولتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار انسان ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرم فرمائے. آمین آمین. چلیں دوستو، آج کی براڈ ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر رات کو ملاقات ہوگی. کیا سنا معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ایمان سے رکھے، ایمان قائم رکھے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے ان فتنوں سے دور. آمین آمین آمین. سرجن بھائی آپ ابھی آئے ہیں، کچھ بات کرنی ہے؟ کیونکہ میں ابھی جو ہے سونے لگا ہوں. نہیں بس شاید وہی میں ابھی اٹھا تھا تو آتے ہی میں نے آپ کی لائیو دیکھی اور آ گیا. تو چلیں انشاءاللہ بعد میں آپ آئیں گے تو پھر گپ شپ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. اور کسی نے کچھ کہنا ہے تو پھر میں براڈ بند کروں. میل بھائی، یہ عظیم صاحب آئے ہیں کوئی 03. آپ نے کچھ بات کرنی ہے جی؟ مسٹر عظیم عظیم مسٹر عظیم راؤ صاحب تسی کوئی گل کرنی ہے سونے؟ چلیں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. اوکے حافظ. صحیح. اللہ حافظ.